अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक लिटरेरी और रिटन सोर्सेज। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर रिटन सोर्सेज एंड हाउ दे आर इंपॉर्टेंट टू हिस्ट्री। Written sources are those sources which were written on paper, brickbark, hides, palm leaves, or cloth. These include contemporary letters, eyewitness accounts, official records, political declarations and decrees, administrative texts, histories, and biographies, which were written during the period to be studied. तो कंटेम्प्रेरी लेटर्स हो गई वो लेटर्स जो किंग्स ने अपने ऑफिशियल्स को लिखी, या प्रिंसेस को लिखी, या गवर्नर्स को लिखी, या फिर किसी दूसरे किंग को लिखी जो कहीं और पे रूल कर रहा था। सिमिलरली आई विटनेस अकाउंट हो गया वो जो किसी पर्सन ने खुद देखा हो और बाद में किसी हिस्टोरियन को वो सब बता दिया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स विच वेर मेंटेन्ड बाय द किंग्स एंड देयर ऑफिशियल्स, political declarations or decrees, these were the orders issued by the rulers to their officials for any kind of implementation of the policy. Administrative texts, these include all the official histories of the time which were written by the court historians for their kings. Similarly, histories, these include both the private histories and the official histories. प्राइवेट हिस्ट्री हम उसको बोलते हैं जो इंडिविजुअल ने खुद देखा और अपनी मर्जी से लिखा, ना किसी गिफ्ट के लिए, ना किसी हाई पोजीशन के लिए। सिमिलरली ऑफिशियल हिस्ट्रीज हो गई वो जो यूजुअली लिखी गई ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द किंग। बायोग्राफीज जो यूजुअली अपनी पर्सनालिटीज़ या किसी भी पर्सन ने लिखी हो किसी दूसरे के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अबुल फजल ने एक बुक लिखी अकबरनामा फॉर हिज एम्परर किंग अकबर। So these sources are very much important. We can say that without these sources, a perfect history can't be written because they give us a lot of information that was penned down by the historians of the time or the people who wrote during that period. So historical records are the places where they are kept are known as archives. जहाँ पे इन historical documents को रखा जाता है, original copies को रखा जाता है, these are called archives. तो ये गवर्नमेंट के लिए important होती है, they are protected. A person who works in archives is called an archivist. वो person जो protect करता है, जो safeguard करता है इन archives को, इन documents को, इन official histories को, तो उसको हम कहते हैं archivist. The study and the practice of organizing and preserving the information and the materials in archives is called archival science. तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें इनसे मिलती है या इस मटेरियल में जो भी अवेलेबल होता है या जहाँ पे भी ये मटेरियल रखा जाता है और फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन ली जाती है, दैट्स कॉल्ड archival science. So written or literary sources are generally classified into indigenous sources and foreign sources. When we say indigenous sources, these include all the written records of the time which were written within the country. Say for example, we are discussing about medieval period of India. So all the sources, all the records which were written during that period in India are called as indigenous sources. Similarly, some people came to India just for visit, for studies, or sometimes as ambassadors or officials of other kings. They wrote certain books or records, or we can say accounts. These are called foreign sources. For example, there's a trade relation between India and China. Whatever is China is writing about India, that is known as foreign source. Whatever is Pakistan writing about India, that's a foreign source. So it means other countries write the record, or we can say maintain the record of happenings, and these records are officially called as foreign sources. You can see here it is an archive. So archive of India, where most of the histories, or we can say all the historical records are kept, say we can say kept and saved or protected from destruction or decomposition, or we can say from any kind of disaster. Once again, these are the archives of India, where most, or we can say all the records have been kept to preserve them. Let us try to understand about indigenous sources of India. Indigenous sources of India include manuscripts written on brickbark, palm leaf, bamboo leaf, cloth, or paper. When we say manuscript, it is a handwritten document जो हाथों से लिखा गया था किसी भी जो डॉक्यूमेंट किसी भी पेपर पे या लीफ पे, बम्बू पे या हाइड पे, क्लॉथ पे, तो इसको हम कहते हैं manuscript. बहुत सारे manuscripts मिले हैं हिंदुस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड. They deal with religion, philosophy, science, and art. These were written in different languages according to the regional diversity. तो हिंदुस्तान में कोई एक लैंग्वेज नहीं है, इस वजह से जितने भी manuscripts मिले हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में मिलते हैं. जैसे तमिल में, तेलुगु में या पंजाबी में बहुत से manuscripts मिले हैं, पर्शियन में मिले हैं,
या इसके अलावा जो हिंदी या संस्कृत है, ख़ासतौर पे संस्कृत, तो काफ़ी सारे manuscripts अवेलेबल है हिस्टोरियंस के लिए उनको स्टडी करने के लिए। So manuscripts were handwritten books. The copies of manuscripts were also handwritten by scribes. कभी कभार इन manuscripts को कॉपी किया जाता है, यानी हाथों से कोई और तैयार किया जाता है एक को देखकर, जैसे हम यूजुअली लिखते हैं, बुक से कोई चीज़ उतारते हैं और हाथ से लिखते हैं, दैट्स ऑल्सो अ manuscript। तो उसको जो ये सब करे, जो कॉपी करे, जो manuscript लिखे, उसको हम कहते हैं स्क्राइब। स्क्राइब मीन्स राइटर। यहाँ पे आपके सामने हिंदुस्तान से लिया गया है एक manuscript दैट्स वेरी मच ओल्ड, बिलोंग्स टू द अर्ली मिडिवल पीरियड, दैट्स रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। यहाँ पे और एक पिक्चर आपके सामने है जिसमें आप देख सकते हैं पाम लीव्स जो लेफ्ट साइड में है, इनको पहले सुखाया जाता था, फिर फिनिश दिया जाता था, फिर ऑयल लगाया जाता था और इसके बाद उस पर लिखा जाता था किसी बी मटेरियल से, मोस्टली जो चारकोल होता था उससे लिखा जाता था। नाउ इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज ऑफ द टाइम। तो बहुत सारी बायोग्राफीज है उस पीरियड की जो लिखी गई। So they give us detailed information about person's life. They were written in different languages. Autobiography is the life story of a person written by the person himself. So memoirs or biographies. Memoir means memories. कुछ ऐसे रूलर्स थे जैसे बाबर या जहांगीर, उन्होंने अपने बारे में कुछ मेमोरीज को लिखा, नोट डाउन करके रखा और इस तरह से उनको कहते हैं मेमोइर्स। तो बायोग्राफीज हो गई वो जो एक पर्सन दूसरे पर्सन के बारे में लिखता है, जैसे अबुल फजल की हमने बात की थी अकबरनामा। So they give us a lot of information about the rulers. Some of the important biographies and autobiographies of Mughal period are Tuzki Babri. It's also called as Babarnama. It was written in Turkish language by Babar. इसमें बाबर ने काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है अपनी स्ट्रगल की, किस तरह से सेंट्रल एशिया से वो निकाला गया, किस तरह उसकी एम्पायर ख़त्म हो गई। तो बाबर ने इसमें अपने बारे में बहुत कुछ लिखा है जिसमें वो देखता है कि जिसमें उसे वो लिखता है कि किस तरह से उसको सेंट्रल एशिया में अपने अंकल्स ने एम्पायर छीन ली, फिर वो किंगडम लेस किंग बन गया और इस तरह से फिर फाइनली हिंदुस्तान पे अटैक किया, सबसे पहले काबुल, फिर कंधार और इस तरह से फिर आहिस्ता वो हिंदुस्तान पहुंच गया। साथ ही में वो अपनी जो फेवरेट फ्रूट्स के बारे में बोलता है, रूट्स के बारे में बोलता है, अपनी आर्मी की बात करता है और अपने रिलेटिव्स की बात करता है। इसी तरह से तुझकी जहांगीरी, जिसमें जहांगीर ने पर्शियन लैंग्वेज में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट हिज एम्पायर, मोस्टली अबाउट द वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर की ब्यूटी, कश्मीर के फ्लावर्स, कश्मीर के माउंटेन्स, कश्मीर के पाथ्स, ये इन सब की इन्फॉर्मेशन हमें इस तुझकी जहांगीरी में देता है। साथ ही में उसको जो वाइन पीने की आदत थी वो इस बारे में भी लिखता है। लेकिन दोनों में एक ही डिफरेंस है, बाबर अपनी कमज़ोरियाँ यानी खामियाँ, वीकनेसेस भी लिखता है, जबकि जहांगीर सिर्फ अपनी जो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो इसमें मेंशन करता है। अकबरनामा दैट वाज रिटन इन पर्शियन बाय अबुल फजल, तो इसके 3 वॉल्यूम्स है, 3 पार्ट्स है। तो आज जिस अकबरनामा की हम बात करें, इट इज़ बेसिकली a big book and it is generally divided into 2 parts. Though it is having 3 volumes, but it is divided into 2 parts. One is called Ain Akbari and second is called Akbarnama. तो ये इसमें लिखा गया है कि किंग अकबर कैसे किंग बना, उससे पहले जो रूलर्स थे, उसके एंसेस्टर्स थे, उन्होंने किस तरह से फाउंडेशन रखी मुगल एम्पायर की हिंदुस्तान में, और साथ ही साथ में अकबर को क्या पसंद था, अकबर की एम्पायर में किस चीज़ की क्या कीमत थी, साथ ही में किस चीज़ का बिजनेस करता था जो मुगल इंडिया था बाकी दुनिया के साथ। यू कैन सी हेयर ऑन द लेफ्ट साइड इट इज़ बाबरनामा और तुज़की बाबरी। सिमिलरली जो पेंटिंग्स है ये इनके साथ अटैच की गई है, यानी जितनी भी बुक्स लिखी गई उनके साथ साथ पेंटिंग्स भी रखी गई और उनको इलस्ट्रेट भी किया गया। व्हेन वी से इलस्ट्रेशन इट मीन्स एक्सप्लेनिंग पेंटिंग इन वर्ड्स, यानी पेंटिंग के साथ साथ उस पेंटिंग के बारे में कुछ लिखना, दैट्स कॉल्ड इलस्ट्रेशन। तो मुगल टाइम्स की काफ़ी सारी पेंटिंग्स मिलती है उन्हीं बुक्स में जो इस वक्त अवेलेबल है। दो पेंटिंग्स वर destroyed by Aurangzeb, but some of the paintings survived onslaught of time. These two pictures show us Jahangirnama and Akbarnama of Abul Fazl. सो अकबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखी थी इसको बाद में एच ब्रिविज ने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जहांगीरनामा को भी बाद में ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में। इट वाज डन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। Chronicles are basically the official histories of rulers written by their court poets and historians in chronological order. When we say chronological order, it means the order in which kings ascended the throne. जैसे सबसे पहले किंग बना बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो इस तरह से बाबर, हुमायूं, अकबर,
जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये क्रोनोलॉजी में दी गई है, यानी डेट के हिसाब से। इसी हिसाब से जो हिस्ट्री लिखी जाती है उसको हम कहते हैं क्रॉनिकल। दीज आर बेसिकली ऑफिशियल हिस्ट्रीज, क्योंकि हिस्टोरियन को अपॉइंट किया जाता था हिस्ट्री लिखने के लिए बाय द किंग। किंग्स यूजुअली पसंद करते थे, मुगल ज़्यादातर पसंद करते थे उनके कोर्ट में कोई हिस्टोरियन हो जो उनके बारे में लिखे और रिकॉर्ड रखे। तो इस तरह से शुरुआत तो अकबर ने की, लेकिन ये कंटिन्यू चलता रहा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब के टाइम तक बहुत सी हिस्ट्रीज लिखी गई अलग अलग रूलर्स के बारे में। तो जहांगीर के बारे में भी लिखी गई, अकबर के बारे में लिखी गई, शाहजहां के बारे में लिखी गई, औरंगजेब के अर्ली पीरियड के बारे में लिखी गई। सो दीज आर कॉल्ड क्रॉनिकल्स। दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट दे आर समटाइम्स बायाज्ड। व्हेन वी से बायाज्ड, इट मीन्स फेवरेटिज्म, यानी जो कोर्ट हिस्टोरियन जिसको पता है मेरी पोजीशन अच्छी है, मुझे मेरी तनख्वाह अच्छी है, जागीर दी गई है, किंग के साथ मुझे रहना है, तो वो किंग की यूजुअली तारीफ करता है, जैसे अबुल फजल ने की अकबरनामा में अपने किंग अकबर की। सो समटाइम्स किंग इज अपॉइंटेड स्कॉलर्स टू राइट ऑफिशियल क्रॉनिकल्स फॉर देम। ओबेसली जो कल्नियल टॉड था उसने अपनी एक फेमस बुक लिखी है जिसको हम कहते हैं एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। ये तमाम जो उस टाइम की राजस्थान में मटेरियल अवेलेबल था, हिस्ट्रीज लिखी गई थी, उनको कलेक्ट करके जो ये कल्नियल टॉड था इसने एक बड़ी सी बुक बना दी और इसको पब्लिश किया 1829 में। तो आज भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है क्योंकि इसमें राजस्थान के लगभग सारे किंग्स के बारे में डिटेल्स मिलती हैं। सो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान आपके सामने है, जेम्स टॉड और विलियम क्रुक, इन दोनों ने मिलकर इसमें लिखा था। मोस्टली जेम्स टॉड ने इसको किया और विलियम क्रुक ने इसको हेल्प किया, मटेरियल प्रोवाइड किया। सो यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है जेम्स टॉड की ऑन द राइट साइड। सो डियर किड्स, यहाँ पे और कुछ हमारे पास है इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स ऑफ मिडिवल इंडिया जो लिखी गई थी उस टाइम पे। सबसे पहली बुक है राज तरंगनी। इट वाज रिटन बाय पंडित कल्हना, जो कश्मीरी पंडित था, और ये सिर्फ कश्मीर की हिस्ट्री है। इसको इसका मतलब जो है राज तरंगनी, इसका मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स, और वी कैन से लाइन ऑफ किंग्स। तो 1149 से 1150 तक का पीरियड है जिसमें ये लिखी गई। बट इस हिस्ट्री में कश्मीर के बारे में हमें फ्रॉम द बिगिनिंग, जो कश्मीर वैली कैसे बनी, ये एक लेक था सतीसर, फिर इसको कैसे रूलर्स यहाँ पे आए, कैसे रूलर्स ने यहाँ पे रूल एस्टैब्लिश किया, इस बारे में सब कुछ लिखा गया। सो फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू 1150 तक का जो पीरियड है वो इस राज तरंगिणी में लिखा गया। इसके लिए कल्हना ने बहुत से चीज़ों का यूज़ किया, जैसे क्वाइन्स का स्टडी किया, या जो पुरानास थे, नीलमत पुराना, पुरानी संस्कृत टेक्स्ट बुक्स या टेक्स्ट्स, उनका स्टडी किया और ये बुक लिख डाली। एशिया में ये पहली हिस्ट्री समझी जाती है। इट इज़ द ओनली बुक विच इज़ कॉन्सिडर्ड एज द ट्रू हिस्ट्री इन एशिया। इसके बाद विक्रमन विक्रमन का देवा, ये लिखी थी बिल्हाना ने। बिल्हाना भी असल में कश्मीरी ओरिजिन का था। ही वॉज ऑल्सो अ पंडित। ही हैज़ रिटन दिस बुक संस्कृत इन संस्कृत लैंग्वेज। पृथ्वीराज रासु बुक लिखी गई है चांद बरदाई ने। ये लिखी गई है राजस्थानी लैंग्वेज में, एंड इसमें लिखा गया है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो अजमेर का रूलर था और जो राजपूत क्लान से बिलोंग करता था। तारीखी हिंद, इट वॉज रिटन बाय अल-बिरूनी इन अरबिक लैंग्वेज। अल-बिरूनी वो ट्रैवलर है जो हिंदुस्तान आया महमूद अब गजनी के साथ, और जो भी उसको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिली उसने उसमें लिख दिया। इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कश्मीर के बारे में, और ये कश्मीर के रूट्स के बारे में बोलता है, रिलीजन के बारे में बोलता है, लोगों की सिंपलिसिटी के बारे में बोलता है, यहाँ के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता है। तो इट वॉज रिटन बाय अल-बिरूनी इन अरबिक लैंग्वेज। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा असल में लिखी थी उसकी बहन गुलबदन बानो बेगम ने, इन पर्शियन लैंग्वेज। इसमें वो बताती है हुमायूं को कैसी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी फ्रॉम हिज ब्रदर्स, और किस तरह से शेर शाह सूरी ने उसको डिफीट करके हिंदुस्तान से बाहर निकाला, फिर वो कैसे वापस आया और इस तरह से मुगल एम्पायर को दोबारा हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश किया। साथ ही में वो हुमायूं की वो प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं जो उसने फेस की थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम। अकबरनामा, इट वॉज रिटन बाय अबुल फजल इन पर्शियन। जैसा मैंने पहले भी कहा, इट गिव्स अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड ऑफ अकबर। पादशाह नामा, इट वॉज रिटन बाय अब्दुल हमीद लाहौरी इन पर्शियन लैंग्वेज। अब्दुल हमीद लाहौरी जो कि एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन रहे शाहजहाँ के पीरियड में, और इसने बुक लिखी है पादशाह नामा। इट्स ऑल अबाउट एम्पर शाहजहाँ। शाहनामा फिरदौसी, दैट्स इन पर्शियन। फिरदौसी एक कोर्ट हिस्टोरियन था महमूद अब गजनी का, जिसने एक बुक लिखी है शाहनामा, और इसमें वो बताता है कैसे महमूद अब गजनी ने 17 बार हिंदुस्तान पे हमले किए और यहाँ का वेल्थ अपने साथ ले गया। साथ ही में किस तरह से गजनी की सिटी डेवलप हो गई और किस तरह से वो डेकोरेट की गई। तबाकत नसीरी, तबाकत, तबकात या तबाकत, इसका मतलब होता है पार्ट्स।
या वॉल्यूम्स। सो तबकात नसीरी जो लिखी थी मिनहाजुस सिराज जुज़जानी ने पर्शियन लैंग्वेज में, ये सुल्तान ऑफ दिल्ली के बारे में लिखी गई है। तारीख फिरोज शाही, इट वाज रिटन बाय जियाउद्दीन बर्नी इन पर्शियन लैंग्वेज। इट गिव्स अस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द सुल्तान ऑफ दिल्ली, स्पेशली ऑफ फिरोज शाह तुगलक। तुगलकनामा, इट वाज रिटन बाय अमीर खुसरो इन पर्शियन लैंग्वेज। तो इसमें वो बताता है हमें खिलजीज़ के बारे में, स्लेव्स के बारे में या तुगलक्स के बारे में। तो 3 जो लीनिंग डायनास्टीज़ थी जिन्होंने हिंदुस्तान पे रूल किया सुल्तान ऑफ दिल्ली के टाइम पे या दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, वो उसके बारे में हमें अमीर खुसरो बताता है। अमीर खुसरो वाज द फर्स्ट पर्शियन पोएट एंड इवन his poems his poems were later on written in Hindi language that is similar to Urdu। अगर उर्दू की पोइट्री हमें जाननी हो तो सबसे पहले अमीर खुसरो की पोइट्री की स्टडी करनी पड़ती है। इसने काफ़ी सारी बुक्स लिखी है। इट इज़ बिलीव्ड दैट ही रोट ऑलमोस्ट 100 बुक्स, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो ख़त्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तो अभी इतनी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दिस इज़ कलहनाज राजतरंगी, दैट्स ऑल अबाउट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, स्पेशली द वैली ऑफ कश्मीर। इट वाज ट्रांसलेटेड बाय M.A. स्टीन, तो इसको बाद में री एडिट भी किया है एस जैन ने। अल-बिरूनी हु ट्रैवल्ड विथ महमूद ऑफ गजनी एंड रोट तारीख हिंद इन अरबिक लैंग्वेज। हुमायूं नामा, रिटन बाय गुलबदन बानो बेगम, द आंट ऑफ अकबर एंड द सिस्टर ऑफ हुमायूं। तुगलकनामा जो अमीर खुसरो ने लिखी है, हयात गिलानी। फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। तबाकत नसीरी, इट वाज रिटन बाय मिनहाज सिराज जुज़जानी, जिसको बाद में इलियट एंड डाउसन ने ट्रांसलेट किया। दीज वर द इंग्लिश ट्रांसलेटर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो फॉक टेल्स, दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्रीज। फॉक टेल हम बोलते हैं उन स्टोरीज को जो यूजुअली किसी एल्डर से सुनी जाती है, अबाउट द किंग्स, अबाउट देयर रूल, अबाउट द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिस्टोरियन कभी कभार कुछ ऐसे लोगों से भी मिलने की कोशिश करता है जिनकी लाइफ, जिनकी एज ज़्यादा हो या जिनको कुछ स्टोरीज याद हों, तो उनको हम कहते हैं फॉक टेल्स। फॉक टेल्स की एक कलेक्शन कश्मीर में भी है जिसका नाम है कथा सरिता सागर। इट वॉज रिटन बाय कश्मीरी स्कॉलर सोमहा देवा और ये संस्कृत में लिखी गई है। इसके साथ साथ बिरहत कथा कोशा, इट वॉज रिटन बाय हरिसेना इन द 10th सेंचुरी। हरिसेना ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। तो ये गुप्ता पीरियड के बारे में हमें बताते हैं फॉक टेल्स की। फॉक टेल्स में जो स्टोरीज मिलती हैं गुप्तास के बारे में। तो डियर फॉक टेल्स की कुछ पेंटिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग ऊपर सुना रहे हैं और नीचे बैठे हैं, यानी जिनको ये टेल्स याद होती थी, कभी म्यूज़िक के साथ कभी म्यूज़िक के बगैर, ये सुनाई जाती थी बच्चों को, बूढ़ों को, जो भी इसमें इंटरेस्ट होता रखता था उसको सुनाई जाती थी। फॉरेन सोर्सेज जिनमें ट्रैवल अकाउंट्स और ट्रैवलॉग्स होते हैं। तो ट्रैवल अकाउंट हम यूजुअली बोलते हैं उनको जो उन लोगों ने लिखी है जो किसी जगह पे ट्रैवल के लिए गए हैं। से फॉर एग्जांपल मिडिवल पीरियड में बहुत सारे लोग हिंदुस्तान आए, कभी स्टडीज़ के लिए, कभी रिलीजन के लिए, कभी पिलग्रिमेज के लिए, यानी किसी रिलीजियस प्लेस को देखने के लिए, या कभी कभार वो किंग्स के कोर्ट में आए, तो उन्होंने जो कुछ भी देखा वो अपनी अपनी बुक्स में लिखा। तो इनको हम बोलते हैं ट्रैवलॉग्स। हिंदुस्तान में मिडिवल टाइम्स में बहुत सारे लोग आए और उन्होंने अपनी अपनी जो भी उन्होंने कुछ देखा हिंदुस्तान में वो सब लिखा। जैसे अल-बिरूनी महमूद अफ गज़नी के साथ आया, उसने तारीख हिंद लिखी। तारीख हिंद के कई सारे नाम हैं, तहकीक हिंद, तारीख हिंद, किताबुल हिंद, इसको लिखा गया था अरबिक लैंग्वेज में। इसी तरह से ये काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें देती है कल्चर, रिलीजन, फिलॉसफी, जियोग्राफी एंड कल्चर्स ऑफ द टाइम, और वी कैन से रिलीजन ऑफ द टाइम एज वेल, सिमिलरली पॉलिटिक्स एज वेल। You can see here there are some other travelers who visited India during medieval period. It was Ibn Battuta, जो मोराकोन ट्रैवलर था, उसने भी एक बुक लिखी है किताबुल रहला, एंड इट वाज रिटन इन मोरिश लैंग्वेज। तो इसी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में उसको जज भी बनाया गया था दिल्ली का, यानी ही स्टेड इन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 6 years एंड रोट अ बुक किताबुल रहला। तो किताबुल रहला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, बाद में इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। डोमिंगो पीज़ एक पुर्तगीज़ ट्रैवलर था जो पुर्तगाल से आया था, उसने भी हिंदुस्तान के बारे में लिखा। आज जो हिस्टोरियंस स्टडी करते हैं वो इनकी बुक्स ज़रूर पढ़ते हैं और फिर अपनी जो हिस्ट्री है उसको कंप्लीट करते हैं। सो डोमिंगो पीज़ ही विजिट द कोर्ट ऑफ कृष्णदेवराया। विजयनगरा किंगडम एक इंपॉर्टेंट किंगडम थी हिंदुस्तान में, कर्नाटका में, जो मिडिवल टाइम्स में फ्लोरिश हो गई, और फिर यह इस किंगडम का एक इंपॉर्टेंट रूलर था कृष्णदेवराया। तो कृष्णदेवराया के बारे में डोमिंगो पीज़ ने बहुत कुछ लिखा है। इसी तरह से विलियम हॉकिंस और थॉमस रो आए जहांगीर के कोर्ट में परमिशन के लिए टू हैव अ ट्रेड इन इंडिया, यानी इंग्लैंड और इंडिया के बीच में ट्रेड रिलेशंस बनाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट एम्बेसडर्स आए इंग्लैंड से, जिनमें एक था विलियम हॉकिंस और दूसरा था थॉमस रो। दोनों ने जहांगीर से परमिशन ली और इस तरह से इंग्लैंड और इंडिया के बीच में ट्रेड रिलेशंस हो गई। बाद में यही जो लोग थे
इन्होंने ही हिंदुस्तान पे फिर रूल किया अंडर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे है मार्को पोलो, जो इटालियन एम्बेसडर था, जो चाइना चला गया और उस टाइम पे कुबलाई खान वहाँ पे रूल कर रहा था। कुबलाई खान था ग्रैंड सन चंगेज़ खान का, जिसने चाइना पे रूल किया, चाइना को पहले कब्जे में लिया, उसके बाद रूल किया। और उसके टाइम पे मार्को पोलो वहाँ पे पहुँचा। 25 साल उसने ट्रैवल किया और काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस देखी उसने, चाइना की टेक्नोलॉजी देखी। और इतना ही नहीं, कुछ लोग मानते हैं कि जो प्रिंटिंग प्रेस, जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, वो चाइना से पहुँच गई यूरोप, पहले इटली, फिर बाद में जर्मनी, फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में, और वो पहुँचाई थी मार्को पोलो ने। तो मार्को पोलो मरने से पहले उसने ये सारी स्टोरी बता दी एक पर्सन को, और इस तरह से एक बुक तैयार हो गई, ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। ये भी हिंदुस्तान के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बिकॉज एट दैट टाइम चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनमें से एक रूट पास होता था एशिया से लेकर यूरोप तक, दैट वाज कॉल्ड सिल्क रूट। और इसी सिल्क रूट के रास्ते से मार्को पोलो ने ट्रैवल भी किया। तो इसके साथ ही ये चैप्टर क्लोज हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में अपने कमेंट्स भी दीजिए, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो। अल्लाह हाफिज़।